Okay, we are going to start now. Um, we'll we'll start off with a new topic. Um, just wanted to make sure the screen is visible to everyone. Yeah, thank you, thank you. Um, so what we have done so far is we have talked about discrete and continuous single random variables, multiple random variables, joint distributions, and we also talked about expectations, variance, how to calculate those for these random variables. And before that, we had talked about the basic probability. Um, so this has taken us a bit longer than we expected. Um, so um, we will probably not be able to finish the entire promised material that we had intended for this course. What I will do is that I will have the lecture notes available. वो हम available कर देंगे. Although we will may not be able to cover all of that material, but for your benefit, we will share that in any case. So so today we are moving a little bit, in a direction which is about the estimates of probability. Estimates of probability. And this will lead us to the direction of estimation. Um, Not immediately, but maybe in 2 lectures, we will find out how to estimate the parameters of distributions, how to estimate the value of random variables, and so on and so forth. We always give example of Lahore's weather. Um, if you know the Lahore's weather for the past 5 years, every single day, then can you predict the weather tomorrow? So if the answer is yes, then that is something that we will be covering in the next few lectures. Okay. Or at least you will have the tools available to answer that questions. um, so first of all, let me ask you this question. Let's say there is a random variable, x, and I ask you what is the probability x is greater than 5.6. Okay. Can anybody can anybody answer that question? Well, you will say that, tell us something about x. We cannot answer these questions unless you tell us something about x. But in order for us to tell you something about x, we will have to specify x. Then I will probably not need the estimate here. I will know the exact answer. If I know the distribution of x, I can exactly answer this question. However, However, if you don't know anything about x, what the distribution of x is, there is not much you can do. You cannot answer this question, probability x greater than 5.6. I don't know what x is. I don't know what the distribution of x looks like. Okay. Can I can I give an estimate about this probability? That can you tell me that this probability is approximately equal to something? Can we say that this probability is greater than zero point 0.2 or less than 0.7? Can we say anything about it? And we really cannot say anything about that as well, because we don't know anything about x. Okay. So what if you are given the mean? Can tell anything about it until we know something about x. Until we know something about x. अगर x के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकता, बाउंड भी नहीं दे सकता, ये भी नहीं बता सकता कि ये 0.2 से बड़ा है या 0.7 से छोटा है, कुछ भी नहीं कह सकते. ठीक है. But what if you are given the mean? What if you are given the mean of x? शायद उस वक्त हम कुछ जवाब दे सकते हो, मे बी. वेल, अगर मैं आपको मीन बता दूं और I don't tell you what the distribution of x is, whether it's exponential or normal or uniform or even a discrete random variable, binomial, Poisson, अगर मैं कुछ भी ना बताऊं, सिर्फ मीन बता दूं, then again you can't answer this probability question precisely.
can't answer this question precisely, but maybe you can approximately try to answer this question by giving a bound. कोई estimate आप दे सकते हैं, ठीक है? What if you are also given the variance? What if you are also given the variance? So देखें, मीन और वेरिएंस जो है रैंडम वेरिएबल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन तो देते हैं. खाली मीन बता दूंगा तो वो आपको बता देगा कि if you perform the experiment infinite number of times, then all the values that you get, उनकी जो एवरेज निकालें वो मीन रहता है, ठीक है? वेरिएंस आपको ये बताएगा कि how far does the random variable tend to be away from the mean, कितनी उसकी टेंडेंसी है कि वो मीन से दूर दूर जाएगा, ठीक है? So high variance का means कि you can get values of the random variable. You will, when you perform the experiment, you will get the value of the random variable which can be far away from the mean. But if the variance is very small, that means most of the values of x will remain confined within the mean, और थोड़ी दूरी होंगी, ज्यादा दूर नहीं जाएंगी इससे. तो लगता है हमें ये है कि मीन के बारे में बताएं तो शायद हम कुछ थोड़ा सा बता सकें रैंडम वेरिएबल के बारे में. मजीद हम वेरिएंस के बारे में भी बता दें तो हम शायद एडिशनल कुछ बता सकें. सो in order to capture that, we define some inequalities, first of which is a very simple inequality. It's called Markov inequality. This applies to non-negative random variable x. Negative random variable पे ये apply नहीं करेगी. And the Markov inequality says that the probability x is greater than equal to some constant a is always going to be less than equal to expected value of x divided by a. Expected value of x divided by a, and of course a has to be greater than 0, क्योंकि हमारा रैंडम वेरिएबल वैसे ही नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? सो इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है. देयर आर टू प्रूफ्स व्हिच आर गिवन इन द नोट्स. आई विल शो यू वन प्रूफ एंड दैट प्रूफ इज बाय मींस ऑफ एन इंडिकेटर वेरिएबल. एक में इंडिकेटर वेरिएबल रैंडम वेरिएबल है, इसको मैं डिफाइन कर देता हूं. I is equal to 1 if x is greater than equal to a, and is 0 if x is less than a. ठीक है? Then if I can plot this graph, अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट कर सकूं, and this graph says कि this is a line x over a. This is the line x over a. This is the line x over a. X is along the horizontal axis, and this is a function that I have plotted here. ये function जो मैंने plot किया है, इसका मतलब ये है कि when I have a here, x is a, then the value of this function is going to be 1. So when x is a, this is a over a, the value of the function is going to be 1. तो ये मैंने एक function plot कर दिया x over a. Straight line है, linear function है x over a, जिसकी slope 1 over a है. There is no intercept, तो 0 से ये पास कर रहा है. बड़ा सिंपल सा, ठीक है? Now if I can also plot this function I, इस I को जरा मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ कि this is I is 0 if x is less than a, which means I is here, okay, is 0 when x is less than a, and I is equal to 1 when x is greater than a. ये इस तरह का फंक्शन है. This is your I. ठीक है? And you can notice that this green guy is always below the red guy. Green guy is always below the red guy. So I is always less than equal to x over a. I is always less than equal to x over a. Okay? So if I take the expectations on both sides, so that means expectation of I would also be equal to expectation of x divided by a. Okay, so that means this expected value of I, what is expected value of I? I takes two values, one with probability x with x greater than a, and 0 with probability x less than a. So that means
कि expected value of I is nothing but x greater than a, which is less than equal to expected value of x divided by a। यहाँ पे हमने सिर्फ I की एक्सपेक्टेशन को लिख दिया। यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल है I जो दो वैल्यूज लेता है 1 और 0, 1 with probability x greater than a and 0 with probability x less than a। So probability of x greater than equal to a is the expected value of I, which turns out to be less than equal to expected value of x over a. Very simple. There is another alternate way of proving the same thing. You can take a look at the notes for that. Okay. I will give you a couple of examples. Before I give examples, सबसे पहले एक एग्जांपल तो ये है कि यहाँ पे मैं set a is equal to 2 times expected value of x ऐसे पुट करके देखते हैं। ये कोई एक कांस्टेंट था जो मैं 2 times expected value of x कर देता हूँ। Then Markov inequality says कि probability x is greater than equal to 2 times expected value of x. What first focus on what we are saying here, what this expression is saying कि what is the probability your random variable will take twice the value of its expected value। यानी आपको एक random variable है, हमने आपको उसकी expected value बताई हुई है, ठीक है। अगर expected value नहीं बताई हुई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसका कोई जवाब ही नहीं दे सकते उसके बारे में। अगर random variable के बारे में कुछ भी नहीं पता तो then we cannot say anything about that random variable। If I tell you the expected value of that random variable and I ask you the question, what is the probability x is greater than or equal to a, then you will say कि जो उसकी expected value थी that divided by a is the bound is the upper bound। ये less than equal to is the upper bound। तो आपकी जो ये probability है left side के ऊपर, this has to be less than that। इसका प्रूफ तो हमने कर दिया, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये है कि a को मैंने 2 times expected value of x पुट कर दिया। What I am asking here is कि what is the probability कि your random variable will take twice the expected value। expected value तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन क्या चांस है कि उस expected value से डबल वैल्यू ले ले वो। So there will be certain probability that it will exceed that value। This has to be less than equal to, according to the Markov inequality, expected value of x divided by 2 times expected value of x, which is 1 over 2, which is 1 over 2। What that means is the probability that your random variable takes a value greater than twice the expected value, अपनी एवरेज वैल्यू से वो डबल वैल्यू को ही लेगा। जब भी हमने एक्सपेरिमेंट किया कोई रैंडम नंबर जनरेट होगा, वो रैंडम वैल्यू जो जनरेट होती है, क्या चांस है कि वो ट्वाइस द एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 over 2 है। इसका क्या मतलब है कि लेट्स से कि पूरी क्लास में लोगों के 50 मार्क्स का एग्जाम है, 50 मार्क्स का एग्जाम है आपके पास 50 मार्क्स का, और हम आपको बता देते हैं कि एवरेज जो है एवरेज है 20, ठीक है। देन व्हाट वी आर सेइंग इज दैट कि 1 over 2 से कम प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब है नो मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन टेक greater than 40 marks। Yeah. How many students या what percentage of students get greater than equal to 40 marks? वो क्लास में आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स के नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से ज्यादा हो जाएंगे तो एवरेज ऑटोमेटिकली जो है वो 20 से ऊपर चली जाएगी। Since the average is given as 20, that means no more than half of the class can get more than 40 marks। No more than half of the class can get 40 marks। ठीक है। So a couple of more examples on Markov inequality। So let's say that there is a train station जहाँ पे ट्रेन्स आ रही हैं, ठीक है, and 40% trains are late। 40% trains late होती हैं। इसका मतलब है probability that a randomly picked train is late is 0.4। ठीक है। Now you need to find the probability that in a given period of time जिसमें 40% of the time trains late होती हैं, in that given period of time probability that
60% trains are late. हमने बताया कि 40% trains are late on average. Are late on average. Now we are asked what is the probability that some random variable x takes a value greater than or equal to 60%, which is 0.6. This is equal to this has to be less than or equal to expected value of x, which is 40% divided by 0.6, which is 2 by 3. इसका मतलब है कि the probability that 60% of the trains will be late has to be less than equal to 2 by 3. इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है. ये बाउंड बता रहा है. This is a bound. ठीक है, this is the upper bound. This is the upper bound. इससे ज्यादा probability नहीं हो सकती. ठीक है. Now same question posed in a different way. Same question posed in a different way. कि let's say कि again trains हैं आपके पास और each train can be delayed. कुछ टाइम पे आ जाएंगी, कुछ टाइम से पहले आ जाएंगी, कुछ. So each train can be delayed and average delay is 40 minutes. Average delay is, it's a different question by the way. वहां पे 40% ऑफ द ट्रेन लेट थी. यहाँ पे हमने बताया कि हर ट्रेन जो लेट हो रही है उनका जो डिले हो रहा है उसकी एवरेज जो है वो 40 मिनट्स है. नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द probability that a random train, एक कोई randomly picked train is 60 minutes late. It's 60 minutes late. ठीक है. ये कैसे होगा? Probability that a randomly picked train is greater than equal to 60 minutes से ज्यादा लेट हो गई है, has to be less than or equal to average is 40 divided by 60, which is again 2 by 3. So answer although के same आ गया, लेकिन these were two different questions in the same scenario. ठीक है. One more example. वहां से आपको पता चलेगा कि ये वाकई जो है ना ये बाउंड है. अब लेट्स से कि x इज अ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल. हमें पता है इस यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल का मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, लेकिन लेट्स से कि हमें पता नहीं है कि यूनिफॉर्म है, लेकिन हमने चुपके से बस हमें किसी तरह से पता है लेकिन हमने बताया नहीं हुआ ये ऑडियंस को कि x इज यूनिफॉर्म 0,4. देन हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होती है. वी नो दैट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज ये 0 से 4 तक है, ये 0 से 4 तक है. What is the expected value of x? Answer in the chat window, please. Expected value of x is going to be 2. Expected value of x is 2. We know that. So अब let's say कि मैं जो है वो ये information hide कर लेता हूँ. I hide this information कि x is uniform between 0 and 4. I only tell you कि that expected value is equal to 2. सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन दी है. This is the information given. ठीक है. और आपको ये नहीं पता कि वो यूनिफॉर्म है. ठीक है. अगर मैंने यूनिफॉर्म बता दिया तो then you can answer all the probability questions with precision. आप immediately आंसर कर देंगे. लेकिन अब मैंने आपको कहा expected value of x is equal to 2 है. Now you cannot answer the question with precision. So I asked this question, what is the probability? Bilal, I see your hand is raised. अभी मैं आपके पास आता हूँ. I see that probability x is greater than equal to 2. अगर ये मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेट करनी हो, मुझे अगर डिस्ट्रीब्यूशन का पता हो, फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन exact probability x greater than equal to 2, answer in the chat window please. Answer in the chat window. What is the probability x is greater than equal to 2? Nobody knows the answer? मैं ये कह रहा हूं कि probability x greater than 2 का क्या मतलब है? x greater than 2 का मतलब ये है कि ये रेड वाला पोर्शन. What is this probability?
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2? इसका हमें जो आंसर पता होना चाहिए जस्ट बाय लुकिंग एट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये यूनिफॉर्म है 0 से 4 तक, आपको इसका पता है, यू नो दिस कि एग्जैक्ट है, यू नो दिस, तो इसका आंसर मुझे एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो CCDF लिखना या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 लिखने, ये नंबर नहीं, मुझे, मैं इसका एग्जैक्ट नंबर बता सकता हूँ भाई, क्या नंबर होगा इसका, एग्जैक्ट नंबर क्या होगा। e टू द पावर 0.5 पता नहीं है, e टू द पावर कहां से आया। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी this just 0.5, just 0.5. This is the exact value, this is the exact value. If I ask you what is the probability x is greater than equal to 3, Shahzad, we do know the distribution, we know this distribution, we do know the distribution, इसीलिए तो ये exact कह रही हैं, इसीलिए exact कह रही हैं, we know the distribution. If we know the distribution, then we can answer it exactly. If we don't know the distribution, then we will not be able to answer this question. Then we will have to use the inequality. फिर हमें bound करना पड़ेगा. Okay. So probability x greater than equal to 3 is going to be you know this guy. ये greater than equal to 3 ये वाला area आ जाएगा. ठीक है? Which is 0.25. This is only when I want to give an exact answer. That is only possible if I know the distribution. What is the probability x is greater than equal to 4? X is greater than equal to 4. Is going to be 0. Is going to be 0. There is 0 probability you can be greater than 4. There is 0 probability that you can be equal to 4. क्योंकि continuous distribution है, equal to 4 की भी probability 0 है. So probability x greater than equal to 4 is 0. Now, if the PDF is not given, if the PDF is not given, using Markov inequality, now let's try to answer this. Let's try to answer this by using Markov inequality when the PDF is not given. So Markov inequality क्या कहती है? Markov inequality कहती है कि probability x greater than equal to a is less than equal to expected value of x divided by a. Expected value of x हमें पता है, although मुझे distribution का नहीं पता. We don't know the distribution. If we don't know the distribution, then probability x greater than equal to a would be equal to expected value of x, which is 2 divided by 2, which is equal to 1. So यहाँ पे ये क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है कि the probability x greater than equal to 2 जो है वो less than equal to 1 है, less than equal to 1 है. ठीक है? तो बिग डील, हमें पता है सारी प्रोबेबिलिटियां जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होती हैं. कोई प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी थोड़ी होती है, हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से लेस देन इक्वल टू होती है. सो नॉट ए वेरी गुड आंसर, नॉट अ वेरी गुड आंसर. तो इतना लूज बाउंड है, ये इतना लूज बाउंड है, ये एक अच्छा आंसर नहीं है. तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 should be less than or equal to 2 divided by 3, expected value of x divided by 3. Well, this answer is acceptable. This answer is acceptable. ठीक है, कुछ हमें वो बता रहा है कि 2/3 से बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन 0.25 और 2/3 में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है. तो लूज बाउंड है, ये भी लूज बाउंड है, लूज बाउंड है, ये भी लूज बाउंड था, लूज बाउंड. इनफैक्ट ये पहला वाला तो यूजलेस ही था, पहला वाला तो इतना लूज था कि यूजलेस ही हो गया. प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मार्कोव इनइक्वालिटी हमें क्या बताती है? should be less than equal to 2/4, which is equal to 1/2. So although okay, ये जो हमें आंसर ये बता रहे हैं, ये जो मार्कोव इनइक्वालिटी जो आंसर बता रही है, ये करेक्ट आंसर है. लेकिन मैं कह दूं कि यार किसी चीज की प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो क्या मैंने कोई इंफॉर्मेशन दी? रियली कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है. ये स्पेशली ये पहला वाला तो जो ये रेड में लिखा है यहाँ पे, ये वाली जो चीज है, ये तो कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा. इससे तो हमें कुछ खास कुछ भी नहीं पता चल रहा. ठीक है,
So this is providing you an information that everyone in the world already knows. ठीक है, इसके लिए तो मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू बताने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो हम वैसे ही कह देते कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताएं क्या होगी, हम उसको कहेंगे जी इट इज गोइंग टू बी ग्रेट लेस देन इक्वल टू 1. सो नो इंफॉर्मेशन देयर. ठीक. सो मार्कov इनइक्वालिटी जो है, it can provide a bound, but the bound can be very very loose. The bound can be very very loose. ठीक है. Can the bound be tighter if we know a little bit more about the random variable? जैसे अगर हम उसको वेरिएंस के बारे में आपको बता दें तो क्या हम बाउंड को जरा टाइट कर सकते हैं? So the answer is yes, वरना हम ये सवाल ही ना पूछते. So answer is going to be yes. वो कैसे करते हैं? Before we do that, I'm going to move to another inequality. It's called Chebyshev inequality. Chebyshev inequality. But before I explain what that is, बिलाल का कोई सवाल है? बिलाल आप प्लीज पूछ लें. जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमें पता ही नहीं हमारा एक्स किस डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, मतलब ऑटो तो ब्लू आ रहा है, तो ऐसे केस में अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कोई ऐसा आउटलायर टक्कर गया हमें, तो वो स्टिल मार्कov इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता होगा? बिल्कुल सेटिस्फाई करता होगा, क्योंकि मार्कov इनइक्वालिटी तो हमने प्रूव कर दी है यार. यहाँ पे वो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि क्लास में अगर आपको हम ये कहें कि क्लास में एवरेज जो आई है किसी एक टेस्ट में, टेस्ट 7 के अंदर या टेस्ट 8 के अंदर जो एवरेज आई है वो 20 मार्क्स आई है, तो आप कहेंगे यार आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो 40 से ज्यादा मार्क्स नहीं ले सकते. ये तो मैं गारंटी दे सकता हूं इस चीज की, यू कैन बेट योर लाइफ ऑन इट. ठीक है, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स अगर 40 से ज्यादा मार्क्स लेंगे तो वो उनको बाकियों की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही जो है वो एवरेज को उठा के 20 से ऊपर ले जाएंगे. राइट, ऐसे ही है ना? अगर सर अगर कुछ बच्चे ऐसे जो बिल्कुल ही यानी 0 ले रहे हैं, तब भी ये फॉलो नहीं होगी बात कि हाफ द क्लास इज मोर देन. मैं आपको बताता हूं लेट्स से क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें से 50 बच्चे 0 ले लेते हैं, 50 बच्चे 0 ले लेते हैं और 50 बच्चे जो हैं वो 40 ले लेते हैं. सही है. ठीक है, तो एवरेज क्या आएगी पूरी क्लास की? 20 आएगी. तो इसका मतलब है 50 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो 40 से ज्यादा स्कोर नहीं ले सकते. अगर 50 से ज्यादा बच्चे 40 से ज्यादा स्कोर लेंगे, फिर बाकियों के स्कोर को तो आप 0-0 भी कर देना, तब भी जो है ना एवरेज के ऊपर निकल जाएगी. ओ ठीक है. अच्छा सर, एक और चीज, एम्पिरिकली हम कैसे मतलब ये एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकालते हैं? हमारे पास तो रियल वर्ल्ड डेटा जो आता है वो तो मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, एग्जॉस्टिव भी नहीं होती, तो यानी किस तरह एस्टिमेशन इसकी भी की जाती है? फिर इसकी भी एस्टिमेशन की जाती है. जैसे मैं आपसे कहूं कि लाहौर में एवरेज हाइट कितनी है लोगों की, जाहिर है पूरे लाहौर की आप हाइट नहीं मेजर कर सकते, आप उसके अंदर से एक सैंपल लेंगे और उसकी हाइट मेजर करेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेट होगी, वो अप्रोक्सीमेट होगी. तो उस अप्रोक्सीमेशन को अच्छा कैसे करेंगे, ये सर्वे सैंपलिंग अभी पढ़ेंगे हम आगे, थोड़ा आगे जाके. ठीक है, थैंक यू जी. सो शेबिशेव इनइक्वालिटी ये बताती है कि हाउ फार अवे you are from the मीन से आप कितनी दूर हैं. तो इसके लिए जो है ना हमें वेरिएंस का पता होना चाहिए, मीन और वेरिएंस का पता होना चाहिए, कि तभी हम बता सकेंगे. अगर नहीं वेरिएंस का पता तो हम ये नहीं बता सकेंगे कि आप मीन से कितना दूर हो सकते हैं. ठीक है, जब एक रैंडम वेरिएबल की मैं वैल्यू जनरेट करूंगा वो मीन से कितना दूर हो सकता है. ठीक है, सो मीन एंड वेरिएंस मस्ट बी नोन, मीन एंड वेरिएंस बी नोन, ये दोनों आपको गिवन होंगे. डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन दी तो फिर तो इनइक्वालिटी मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बाउंड करने की जरूरत नहीं, मैं तो एग्जैक्ट आंसर दे दूंगा. ये बाउंड मैं इसीलिए लगाता हूँ मार्कov इनइक्वालिटी से या शेबिशेव इनइक्वालिटी से या किसी और इनइक्वालिटी से, जब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पता होता. जब नहीं पता होता तो मैं कहता हूँ यार एस्टिमेट करते हैं. अभी हमने देखा यहाँ पे कि मार्कov ने जो ये एस्टिमेट्स आपको दिए थे, ये आंसर्स तो करेक्ट थे, लेकिन ये इतने लूज बाउंड थे कि वो शायद यूजफुल ही ना हो बहुत ज्यादा. ठीक है, सो देखते हैं शेबिशेव क्या करता है. शेबिशेव ये कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट you are away from the mean x minus mu magnitude, which means के x mu से बड़ा भी हो सकता है, x mu से छोटा भी हो सकता है. The distance between x and mu is greater than a. इसका मतलब है कि x is either mu plus a से भी बड़ा हो जाए या mu minus a से भी छोटा हो जाए. ठीक है, what is the probability of that? The probability of that is less than equal to सिग्मा. ये भी बाउंड ही है, ये भी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा, ये भी ये देखिए लेस देन इक्वल टू का मतलब ये बाउंड ही बता रहा है.
is less than equal to sigma square over a square. Sigma square over a square. Mu is the mean of that random variable which is given to you. Sigma is the standard deviation of the random variable which is also given to you. या वेरिएंस आपको सिग्मा स्क्वायर दी हुई होगी, ठीक है. सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्टरनेटली. और एक और तरीका इसको लिखने का है कि x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू a टाइम्स सिग्मा. यानी आप a स्टैंडर्ड डेविएशन दूर चले जाएं मीन से, a स्टैंडर्ड डेविएशंस दूर चले जाएं मीन से, the probability of that is going to be less than equal to, ये ऊपर वाले से डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, आंसर इन द चैट विंडो. ये क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू ऊपर वाली एक्सप्रेशन से ये खुद ही आंसर आना चाहिए, सिग्मा ओवर ए स्क्वायर. कोई आंसर नहीं दे सकता इसका? देखें, a was a constant here, ठीक है. मैं कह रहा हूं कि उस कांस्टेंट को a सिग्मा से रिप्लेस कर दें, उस कांस्टेंट को a सिग्मा से रिप्लेस कर दें, ठीक है. तो अगर लेफ्ट साइड पे रिप्लेस किया है, यहां पर अगर आपने a सिग्मा डाला है तो यहां पर भी a सिग्मा डाल दें, a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1 ओवर a स्क्वायर. सो ये जो चीज होनी चाहिए ये लेस देन इक्वल टू 1 ओवर a स्क्वायर होनी चाहिए, 1 ओवर a स्क्वायर, ठीक है. a की जगह पे सिर्फ a सिग्मा डाल दें. अच्छा, इसका प्रूफ बड़ा मजे का, प्रूफ यू विल एंजॉय इट. सो नोट करें, नोट दैट x माइनस म्यू होल स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, राइट. ये नॉन नेगेटिव है. अगर ये नॉन नेगेटिव है तो देन मार्कov इनइक्वालिटी क्या कहती है? मार्कov इनइक्वालिटी कहती है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर विच इज वन रैंडम वेरिएबल, ये एक रैंडम वेरिएबल समझें, ग्रेटर देन इक्वल टू a square is a constant, greater than equal to a square. According to Markov inequality, this should be less than equal to the expected value of this random variable. The expected value of this random variable. Think of x minus mu square as one single random variable. This should be less than equal to expected value of x minus mu whole square divided by this constant, which is a square. Okay? So this is x minus mu whole square greater than equal to a square. ये वाली जो चीज है ये डायरेक्टली ट्रांसलेट होती है x minus mu is greater than equal to a. लेफ्ट साइड ये डायरेक्टली उसमें ट्रांसलेट हो जाती है. ये प्रोबेबिलिटी होना चाहिए और ये भी प्रोबेबिलिटी होना चाहिए. So this has to be less than equal to, ये जो ऊपर यहाँ पे आ गया ये क्या चीज है? ये सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर और स्क्वायर. कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक मार्कऑफ इनइक्वालिटी से डायरेक्टली प्रूफ आ गया. सिर्फ हमने मार्कऑफ इनइक्वालिटी को जरा क्लेवरली लगाया है x माइनस म्यू होल स्क्वायर के ऊपर, उसके ऊपर मार्कऑफ इनइक्वालिटी को निकाला, लगाया एंड वी गॉट द प्रूफ. ऑटोमेटिकली प्रूफ आ गया हमारे पास, ठीक है. नाउ एग्जांपल x इज यूनिफॉर्म. अभी हम आपको बता रहे हैं यूनिफॉर्म है, लेकिन ये देंगे नहीं. अगर हमने ये बताया दिया, सबको यूनिफॉर्म का बता दिया, तो वो तो प्रिसाइज आंसर दे देंगे. प्रिसाइज आंसर नहीं, हमने तो सिर्फ आपको मीन बताना होगा और वेरिएंस बतानी होगी. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x म्यू क्या होगा यहाँ पे? 1 to 5. इसका मीन कितना होगा? आंसर इन द चैट विंडो 3. And variance of x would be answer in the chat window 16 over 12 or 4 over 3.
सो वेरिएंस ये हो गई। अब अगर मैं आपको बता दूं कि x यूनिफॉर्म है between 1 to 5, you will answer all the probability questions precisely, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दे देंगे। बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि x यूनिफॉर्म है। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इंस्टेड इज कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो 3 है और वेरिएंस ऑफ x जो है वो 4 है। ये दो चीजें आपको बताएंगे, ये चीज आपको नॉट गिवन, दिस विल नॉट बी गिवन टू यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और वेरिएंस आपको बता दी, ठीक है। सो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता है कि 1 से 5 तक हमारी डिस्ट्रीब्यूशन थी, 1 से 5 तक डिस्ट्रीब्यूशन थी। सो 3 यहाँ पे था। सो प्रोबेबिलिटी दैट इट्स ग्रेटर देन 4 is 0.25. This is exact only if the distribution of is known, only if distribution is known. मैं ये डायरेक्ट आंसर कर सकता हूं अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का पता हो, अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का पता हो तो मैं डायरेक्ट आंसर कर सकता हूं, ठीक है। दूसरा, if distribution is not known and the variance is also not known, तो मार्कोव इनइक्वालिटी क्या कहेगी? मार्कोव इनइक्वालिटी कहती है कि प्रोबेबिलिटी x greater than equal to 4 is to be less than equal to the expected value is 3 and this guy 4, ठीक है, which is correct by the way। 0.75 है ये आपके पास, तो 0.75 से छोटी है ये प्रोबेबिलिटी, हमें पता है एग्जैक्टली ये 0.525 है, एग्जैक्टली 0.25 है, तो उसने हमें बताया कि जी 0.75 से छोटी है, ठीक है। So again, you can see that this is from Markov inequality. This is a loose bound. This is a pessimistic estimate. It's a pessimistic estimate. ठीक है। सवाल ये है, can we use Chebyshev inequality here? देखते हैं। Chebyshev inequality तो हमें क्या कहती है? Chebyshev inequality जो है ना, आपको ये बताती है कि probability x minus mu ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसके बारे में बताती है और कुछ नहीं बताती है। तो यहाँ पे तो मुझे लग नहीं रहा कि ये बता सकती है कि प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इन जनरल इसका आंसर हम नहीं दे सकते, लेकिन इफ वी नो द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, जो इस केस में है, बाय द वे इस केस में सिमेट्रिक है, ये देखें 3 है और 3 के अराउंड सिमेट्रिक है। इफ वी नो दैट इस पीडीएफ इज सिमेट्रिक, अगर ये भी हमें पता हो, तो फिर हम ये आंसर कर सकते हैं। कैसे आंसर कर सकते हैं? कि हम उसमें ऐसे कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी, ये देखें x माइनस 3, x माइनस द मीन इज 3, x माइनस द मीन इज 3, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो 3 आपको दी गई है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये मैंने 1 क्यों लिया है अभी आपको पता चलेगा, ये मैंने 1 क्यों लिया है, 2 क्यों नहीं लिया, 1.5 क्यों नहीं लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया है। यहाँ पे हमने Chebyshev inequality लगाई है, this has to be less than equal to the variance which is 4/3 divided by a square which is 1 square, so this is really 4/3, ठीक है। So but this guy is saying is के probability that x minus 3, your random variable is going to be away from the mean which is 3, तो random variable मीन से आपका दूर भागेगा by greater than 1 मीन्स के हम इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, और ये सारे रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी दैट x minus 3, x is away from the mean by greater than 1, ये देखिए ये 1 का डिस्टेंस है, और ये भी 1 का डिस्टेंस है, ठीक है। ये 4 है, ये 2 है। सो द प्रोबेबिलिटी दैट x is greater than x minus 3 मैग्नीट्यूड is greater than 1 is equal to 4/3, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे वो सिमेट्रिक होने का हमें क्या फायदा हुआ? सिमेट्री को अप्लाई करें तो हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी x minus 3 ग्रेटर देन 1,
अब ये मैंने देखें ये वर्टिकल लाइंस मैग्नीट्यूड वाली जो है ये खत्म कर दी है। इस वर्टिकल लाइंस का मतलब ये था कि आपका ये रेड वाला रीजन लेफ्ट पे भी हो सकता है और रेड वाला रीजन राइट पे भी हो सकता है। जब मैंने ये खत्म कर दी, नाउ आई एम सेइंग कि x minus 3 is greater than 1, then I am only talking about this region here, green। ये ग्रीन रीजन की बात हो रही है सर, ठीक है, क्योंकि वो दूसरा वाला जो है वो एब्सोल्यूट के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। सो दिस हैज टू बी, चूंकि सिमेट्रिक थी इसलिए ये 2/3 कर देंगे हम इसे, इसलिए 2/3 कर देंगे, which means कि the probability x greater than equal to 4 is less than equal to 2/3। ये आपके पास ये देखें वही वही वाला आंसर आ गया। ये मार्कोव इनइक्वालिटी ने हमें क्या कहा था कि लेस देन इक्वल टू 3.3/4 है। चेबिशेव इनइक्वालिटी क्या कहती है कि लेस देन इक्वल टू 2/3 है। वो भी ठीक था और ये भी ठीक है, लेकिन ये जरा ज्यादा टाइटर बाउंड है। दिस इज ए टाइटर बाउंड, दिस इज ए टाइटर बाउंड। और ये हमें क्यों पता चला, क्योंकि एक तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक थी और दूसरे हमें वेरिएंस का इन एडिशन पता था, वेरिएंस का इन एडिशन पता। सो दिस इज ए टाइटर बाउंड। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सर यस जी फरासत। एक बस क्वेश्चन है कि 4/3 प्रोबेबिलिटी कैसे आ सकती है, तो 1 से ज्यादा नहीं हो जाती? 4/3 वेरिएंस है, प्रोबेबिलिटी नहीं है बेटा। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है सर? नहीं नहीं, ये वेरिएंस है। ये देखेंगे हमने लिखी हुई है, मैं ग्रीन कलर में जो दिखा रहा हूँ आपको, ये वेरिएंस है। सर सो मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी x greater than equal to 4 less than equal to 3/4 है। ये 4/3 इज द वेरिएंस, ये हमने ऊपर पहले कैलकुलेट किया। ठीक है सर, ठीक है। So now I'm going to talk about what we call one-sided Chebyshev, one-sided Chebyshev, one-sided Chebyshev inequality. So this will work for, also works for non-symmetric cases, also works for non-symmetric cases. पहले वाली को two-sided Chebyshev या generic Chebyshev कहते हैं. So this is called one-sided Chebyshev. Probability x minus mu is greater than equal to a. ये बिल्कुल वही चीज एग्जांपल जो हमने ऊपर की है कि जिसमें हमने एक दोनों साइडों को कवर किया था, फिर एक साइड को उड़ा दिया था. नाउ वी कैन शो दैट, अगेन हम इसका प्रूफ नहीं यहाँ पे शो करेंगे, इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर x greater than mu, x greater than mu, for x greater than mu, and the probability mu minus x is greater than equal to a. ये दोनों साइडों को अलग-अलग से बता रहा है. This is going to be sigma square over sigma square plus a square. Same value, same चीज. This is for x less than mu. Mu is greater than x. Mu is greater than x. So पुरानी वाली एग्जांपल हम फिर लेते हैं, प्रीवियस एग्जांपल, वही वाली एग्जांपल लेंगे. यूनिफॉर्म 1 से 5 तक, यूनिफॉर्म 1 से 5 तक. So probability that x minus 3 is greater than equal to 1 is greater than equal to 1. Yeah. So I will apply the one-sided Chebyshev, the one-sided Chebyshev here. So x minus 3 greater than equal to 1 has to be less than equal to the variance, which is 4/3 divided by 4/3 plus 1, 4/3 plus 1, which turns out to be 4/7, 4/7. So therefore, probability that x is greater than equal to 4 is less than equal to 4/7, which is 0.57 by the way. So if you notice here कि यहाँ पर मार्कोव ने हमें जो बताया था, उसने कहा था कि probability x greater than 4 जो है ये 3/4 से छोटी होनी चाहिए, यानी 0.75 से छोटी है. हमें पता है कि 0.25 उसका आंसर है, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता तो मुझे उस आंसर का तो नहीं पता होगा. तो मार्कोव इनइक्वालिटी ने कहा कि 0.75 से छोटी है. शेबिशेव ने कहा कि ये 2/3 है, which means कि ये 0.67 से छोटी है, 0.67 से छोटी है. ठीक है, which is obviously is the correct answer, which is the correct answer. 0.67 से छोटी है, 0.25 is smaller than 0.67, लेकिन 0.67 is better than 0.75. 0.75 is loose bound, 0.67 is slightly tighter, is slightly tighter. यहाँ पे देखेंगे 0.57, this is even tighter, this is even tighter. ठीक है,
This is an even tighter bound, but this is not always the case. This is not always the case. So ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि वन साइडेड चैबीशेव जो है वो हमेशा जेनेरिक चैबीशेव से ज्यादा बेहतर होगी. And there is an example of this. There is an example. See notes. For example, when one-sided Chebyshev may result in loose bound compared to the generic Chebyshev. इसी एग्जांपल की एक एक्सटेंशन है, काइंडली वो जरूर देख लीजिएगा. नाउ एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन है? सर x अपने मीन से छोटा कब होगा, मुझे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें. देखें, मीन वैल्यू जो होती है क्लास की, आप एवरेज देख लें, क्लास में हर बंदे का स्कोर होता है. एक मीन वैल्यू जो होती है वो कहीं दरमियान में किसी जगह पे होती है, राइट? ऐसा ही है ना. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका मीन से ज्यादा स्कोर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मीन से कम स्कोर होता है. तो x अपने मीन से छोटा कब होगा? रैंडम है, रैंडम वेरिएबल है. हम एक्सपेरिमेंट करें, मैं एक रैंडम स्टूडेंट को पिक करता हूँ, मुझे नहीं पता होगा उसका स्कोर मीन से कम होगा या मीन से ज्यादा होगा. कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. तो डज दैट, आई डोंट नो यहाँ इफ पे दैट x ऑफ i नहीं होना चाहिए, x ऑफ i नहीं होना चाहिए. मतलब आप आई तो क्या पूरे चीज है? रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं. मतलब कि x ऑफ i के कोई भी एक रैंडम स्टूडेंट होगा ना, जी हमारे जी. पास x के अंदर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो ये फिर x ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं होना चाहिए, नहीं, एक्स बिकॉज ऑफ x तो आई पूरा क्यों होना रैंडम चाहिए? वेरिएबल है ना. एक्स एक रैंडम वेरिएबल है. फिर रैंडम वेरिएबल को जरा फिर से अंडरस्टैंड करें कि रैंडम वेरिएबल जो होता है उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है. जब मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो वो रैंडम वेरिएबल एक वैल्यू लेता है. वो ऐसा तो नहीं करता कि वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता है, वो एक ही वैल्यू लेगा ना डिस्ट्रीब्यूशन में से, जब एक दफा एक्सपेरिमेंट करूंगा. तो इसी तरह जब मैं एक स्टूडेंट को पिक करूंगा पूरी क्लास में से, वो स्टूडेंट एक ही स्टूडेंट होगा ना, वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं मेरे पास होगी, वो एक रैंडमली पिक्ड स्टूडेंट है. सवाल ये है कि वो जो मैंने स्टूडेंट पिक कर लिया है उसका स्कोर मीन से कम होगा या ज्यादा होगा? कम भी तो हो सकता है ना. तो वो एक्स जो है वो आपका मीन से छोटा हो गया. ओके सर, थैंक यू. ठीक है. ये बदर, आपने सवाल पूछा था? जी सर, बदर, हो गया क्लियर. हाँ ठीक है, सही है. फिर मुझे पता नहीं था कि वो वहाँ पे राइटिंग में जो लिखा हुआ है वो ये या नहीं. ठीक है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, हमने पहले एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम देखा था जिसमें हमने कहा था कि बहुत सारी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस हों, आईआईडी, उन सबको आप ऐड कर दें तो उनका जो सम होगा वो एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होगा. उसका हमने प्रूफ नहीं किया था, बट दैट इज ए मार्वेलस रिजल्ट of probability theory. That is one very very important result of probability theory. The other very important result of the, अगर कोई कहे कि probability theory के टॉप 2 रिजल्ट्स कौन से हैं, तो उसमें से एक जो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, और दूसरा रिजल्ट जो है वो ये वाला है. This is called law of large numbers. There are two laws of large numbers. One is called the weak law of large numbers. Weak law of large numbers. Weak law of large numbers. बेसिकली ये क्या बताता है? वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर आपको ये बता रहा है कि आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है, आप एक्सपेरिमेंट करते जाएं, वैल्यूज निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं. ठीक है. all those values that you have obtained after the experiments, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते गए, वैल्यू आती गई, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते गए, वैल्यू आती गई. ठीक है. उन सब वैल्यूज का मीन निकालें, उन सब वैल्यू का मीन निकालें, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा उसको कन्वर्ज करें. उन सब वैल्यूज का मीन निकालें तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के ऊपर कन्वर्ज करेगी. ठीक है. सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन में लेट्स से कि एक एवरेज हाइट है सबकी. ठीक है. मैं ऐसा करता हूं कि हर बंदे को मैं चूज करना शुरू कर देता हूं, एक को किया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को. सी,
सो फिर मैं एवरेज ऑफ हाइट निकाल लूँ, ये सब 100 के बाद, 200 के बाद, 500 के बाद वो कन्वर्ज कर जाएगी, कन्वर्ज करती जाएगी मीन की तरफ, कन्वर्ज करती जाएगी मीन की तरफ। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक डाइस को जब आप रोल करते हैं तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ठीक है। कैसे शो करेंगे इसको, कैसे शो करेंगे? एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट ऐसे करेंगे कि डाइस को पहली दफा थ्रो किया, पता नहीं क्या आएगा, 5 आए, 4 आए, 2 आए, 3 आए, हमें नहीं पता क्या आएगा। सो लेट्स से कि वो पहली दफा ही 5 आएगा, तो आप कहेंगे ये तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सो 5 जो है वो एक दफा आएगा, फिर दूसरी दफा आएगा, फिर तीसरी दफा, फिर चौथी, हो सकता है कि बहुत सारी दफा के बाद आपके पास 5 आए। नाउ इफ यू हैव अ नंबर ऑफ दीज ट्रायल्स, तो कभी आपके पास 5 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 2, 1, 3, 6, ठीक है। जितनी दफा भी आएगा आपने उन सब का एवरेज निकालते चले जाना है, एवरेज निकालते चले जाना है। तो पहले जब टॉस करेंगे तो एवरेज आपके पास, लेट्स से पहली दफा 5 आ गया तो आपके पास एवरेज भी 5 ही बना है। फिर 5 के बाद 6 आ गया तो आपके पास एवरेज 5.5 हो जाएगा। 2 टॉसेस की है ना, 2 रोल्स की हैं, तो 5.5 आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा करेंगे, फिर चौथा, फिर पांचवा, infinite of these. If you perform infinite of these, then the value that you will get will be the mean of the distribution. और वो mean of the distribution क्या है? जब एक डाइस को रोल करते हैं तो वो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 divided by 6 which is 3.5, वो आपके पास आंसर आना चाहिए इनफाइनाइट रोल्स अगर करते हैं। सो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स जो है वो ये चीज आपको बताता है। सो इसको मैं स्टेट करता हूँ कि if x1 x2 dot 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 xn is a sequence of IID, नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, IID, हमें नहीं पता इनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, IID रैंडम वेरिएबल्स, IID रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। इनको या x1 x2 अप टू xn IID रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं, या यूं समझ लें कि ये एक सिंगल रैंडम वेरिएबल है जिसके लिए आपने n टाइम्स एक्सपेरिमेंटेशन की है। एक दफा एक्सपेरिमेंट किया, फिर दोबारा किया, फिर 3, 4, n टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट किया है, और आपके पास जो है ना वो कुछ रीडिंग्स आ गई हैं, n रीडिंग्स आ गई हैं, ठीक है। सो ईच ऑफ देम with mean mu and variance sigma square, and we define x bar to be equal to the mean of these guys, the mean of x1 plus x2 dot 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 plus xn, ठीक है। Then for any epsilon greater than 0, epsilon कोई नंबर है, it can be very very small, 1 into 10 to the minus 100 हो सकता है, epsilon can be very very small, then the weak law of large number says, कि limit n going to infinity, अगर आपने infinite trial कर ली है, then the probability that x bar minus mu is greater than epsilon, ठीक है। पहले मैं अभी राइट साइड नहीं मैं लिखता, इसकी पहले आपको ये समझा देते हैं ये क्या चीज कह रहा है। What this expression is saying, कि आपने बहुत सारे रैंडम वेरिएबल जनरेट किए x1 से xn तक, फिर आपने उन सब का मीन निकाल लिया, x bar, the mean of the n random variables या n instances of that random variable, where mu is the mean of each of these xi, mu is the mean of x1, mu is the mean of x2, क्योंकि ये सारे IID हैं। So the probability that the distance between x bar and mu, mu जो है वो क्या चीज है, वो एक रैंडम वेरिएबल का मीन है, और x बार क्या है, वो आपने जो n रैंडम वेरिएबल्स लिए थे या n इंस्टेंसेस ऑफ सिंगल रैंडम वेरिएबल लिए थे, वो उनका मीन है, ठीक है। The distance between these two guys is greater than epsilon, and epsilon can be very very small, arbitrary number for any epsilon greater than 0. Now it says that this goes to 0, as n tends to infinity. इसका मतलब है कि आप इनफाइनाइट अगर ट्रायल कर लेंगे
तो x बार माइनस म्यू ग्रेटर देन एप्सिलॉन। देखें अब मैं एप्सिलॉन को 1 into 10 to the minus 100 बहुत ही छोटा ले सकता हूँ, ठीक है। सो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी कि x माइनस म्यू मैग्नीट्यूड डिस्टेंस बिटवीन x बार एंड म्यू उस छोटे नंबर से भी ज्यादा हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। इसका मतलब यह है कि x बार जो है वो म्यू को कन्वर्ज कर गया है, x बार जो है वो म्यू को कन्वर्ज कर गया है। इसका प्रूफ जो है अगेन वेरी क्यूट प्रूफ, जैसे हमने छबीशेफ का किया था, ठीक है। नोट करें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार। आंसर इन द चैट विंडो, answer is in the chat window. Expected value of x bar, please answer in the chat window. Expected value of x bar, where x bar is 1 over n x1 plus x2 plus so on up to xn. Each of x1 x2 x3 has a mean of mu, Hasan Adnan Sayyed says same as expected value of xi. So ये क्या होगा, ये 1 over n म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू कितनी दफा, n टर्म्स, n टाइम्स ये होगा। सो दिस वुड बी इक्वल टू 1 over n into n times mu which is equal to mu, this is equal to mu. सो x बार का जो मीन होगा वो सेम होगा, x बार का जो मीन होगा वो सेम होगा जो किसी एक xi का मीन होगा, जो किसी भी एक xi का मीन होगा। और वो चूंकि IID है सबके मीन बराबर है भाई, सबके मीन बराबर है, ठीक है। So expected value of x bar will be equal to mu, ठीक है। What would be the variance of x bar? Variance of x bar ये भी हमने निकाला हुआ है, ये नई चीज नहीं कर रहे हैं, ये हमने कोई नई चीज नहीं की, ये हमने पहले बहुत दफा किया हुआ है। आंसर इन द चैट विंडो। वेरिएंस ऑफ x बार क्या होगी, वेरिएंस ऑफ x बार क्या होगी, x1 x2 are IID, independent, identically distributed, each with mean mu and variance sigma square. So variance of x bar क्या होगी, 1 over n square into sigma square plus dot 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 plus sigma square. This would be equal to n terms. Again, this is n terms. So this would be equal to 1 over n sigma square. 1 over n sigma square. ठीक है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार भी हमें पता चल गई, ये म्यू आई है, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार भी पता चल गई, ये 1 over n सिग्मा स्क्वायर आई, ठीक है। नाउ यूजिंग द चेबीशेव इनइक्वालिटी, चेबीशेव को अप्लाई करते हैं, चेबीशेव को अप्लाई करें तो वो क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी दैट योर एक्स बार माइनस म्यू, x bar minus mu, which is the mean of x bar, is greater than equal to epsilon, has to be less than equal to sigma square over n, जो उसकी वेरिएंस है, sigma square over n उसकी वेरिएंस है, divided by epsilon square, ठीक है। So this guy goes to 0 as n goes to infinity. This goes to 0 as n goes to infinity for any epsilon. For any epsilon, यहाँ पे epsilon का कोई चक्कर ही नहीं है, जितना मर्जी epsilon आप लेने, as n goes to infinity, this will go to 0. This will go to 0. हाँ, अगर epsilon बहुत छोटा हो जाए तो n को हमें और ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा, और छोटा हो जाए तो और बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन n को हम infinity तक खींच के लेके जा सकते हैं। जितना मर्जी छोटा कर लें epsilon, आप n को infinity तक लेके चले ही जाएंगे, ठीक है। Which means this is the proof. This is the proof. यही तो हमने प्रूफ करना था कि for any epsilon greater than 0, probability that the distance between x bar and mu is greater than epsilon will be equal to 0. Will be equal to 0. Now there is a strong law of large numbers as well. Yes. एक क्वेश्चन सर, मैंने जी जी सर मैंने बस ये पूछा था कि मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम में तो सर ये नहीं बताता था कि हमारा n टाइम्स आपका मीन बन जाता है व्हेन यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स कंबाइंड टुगेदर, वो नॉर्मल। तो सर इसमें तो आप कह रहे हैं कि वो जो स्पेसिफिक रैंडम वेरिएबल उसका वो बन जाता है। हाँ,
जो हमने जब सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ा था ना, उसमें हमने ये 1/n से डिवाइड नहीं किया था। यहाँ पे हमने मीन निकाला हुआ है, ये x बार इज द मीन, इज नॉट द सम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है उसमें हमने कहा था कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, उसका जो मीन होगा वो n टाइम्स द मीन ऑफ वन गाय। यहाँ पे 1/n से डिवाइड भी तो हो रहा है ना। सही सर, ठीक है। जी सर। सो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर जो है, देखें ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर जो है ना, ये कहता है कि इट टेंड्स टू जीरो, व्हिच मींस कि this is called convergence in probability. This is called convergence in probability. ठीक है। Strong law of large number is about convergence, almost sure convergence. It's called almost sure convergence. ठीक है, या convergence with probability 1, convergence with probability 1. Okay, and the strong law of large number, ये मैं आपको सिर्फ स्टेट कर देता हूं यहाँ पे, probability limit n going to infinity, the distance between x bar and mu less than epsilon is equal to 1, is equal to 1, not going to 1, is equal to 1. So जैसे जैसे n को बढ़ाते जाएं, the distance between these guys is less than epsilon for any value of epsilon is equal to 1. तो epsilon को जितना मर्जी छोटा कर लें, ये x बार जो है वो mu को कन्वर्ज कर देगा. So x bar will get closer to mu in the limit and will never jump back. Will never jump back. ठीक है. So होमवर्क के जो लास्ट 2 और 3 क्वेश्चंस हैं, those are solvable by using Chebyshev and Markov inequality. बाकी सारे क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर लिए. There is a question about optimization. मेरा ख्याल है 4th class question है about optimization, but it's really very simple question. उसमें कुछ भी नहीं आपसे पूछा गया मैक्सिमम कब होती है कोई चीज. किसी फंक्शन का मैक्सिमम निकालना हो तो उसका डेरिवेटिव लेके 0 पुट करते हैं. You can solve it that way. It's like a less than 2-minute question. So there is nothing interesting in that, but it will become interesting 2 lectures के बाद, जहाँ पे हमने ये ऑप्टिमाइजेशंस करनी होंगी. सो वो आपको होमवर्क में सिर्फ इसलिए दिया कि यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट, कि ऐसा भी कुछ होता है. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट वी कॉल जेनसेन्स इनइक्वालिटी नाउ. जेनसेन्स इनइक्वालिटी, मार्कोव और चेबिशेव हमने कर दी है. दिस इज अ बाउंड ऑन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी बाउंड. जो मार्कोव और चेबिशेव हमने किए हैं, दोज वर द बाउंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी. ओके, दिस इज द बाउंड ऑन, this is a bound on expected value, not on the probability, on expected value. इसका मतलब है आपको expected value देनी होगी. आपने expected value के ऊपर बाउंड निकालना. If fx is a convex function, convex function क्या होता है? convex function इस तरह का होता है, आपको बता देते हैं. ये फंक्शन जो होता है कन्वेक्स होता है. ठीक है, ये रेड वाला जो होगा ये कनकेव होगा. ठीक है, सो ब्लू वाला जो है कन्वेक्स फंक्शन है. इसको कैसे कर सकते हैं? इस कन्वेक्स फंक्शन के ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स लें और उनको स्ट्रेट लाइन से मिला दें. वो स्ट्रेट लाइन हमेशा कर्व के ऊपर होगी, वो स्ट्रेट लाइन हमेशा कर्व के ऊपर होगी. ठीक है, सो if fx is a convex function, some examples of convex function could be ये y is equal to x square, ये इस तरह का फंक्शन होता है ना, y is equal to x square, ये भी convex function है. ठीक है, so if fx is a convex function, then Jensen inequality says that the expected value of fx can be related to, कोई इनके दरमियान कुछ relationship है, the function of the expected value, the function of the expected value. ओके, तो अब ये क्वेश्चन मार्क जहां मैंने डाला है वहां पे इस तस्वीर को देख के बताएं आपको क्या लगता है कि वो स्मॉलर होगा, ग्रेटर होगा, इक्वल होगा.
Smaller, greater, equal. Answer in the chat window. Look at the picture and answer that. देखें यहाँ पर जो वैल्यू है ये expected value of fx is going to be the mean of these two guys. ठीक है, this is the mean of these two guys. ये सिर्फ हमने 2 पॉइंट से कंसीडर किए and f of ex is जो इन दो का जो मीन है वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, ठीक है, उस जगह के ऊपर जो भी आपकी यहाँ वैल्यू बनती है that is here. So that means this has to be greater than equal to Jensen inequality ये कहती है. इसका प्रूफ भी है. We'll skip the proof. Example इसकी बताते हैं. Example, expected value of x square is a convex function, is always going to be greater than equal to expected value of x whole square. यहाँ स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू ली है, यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर लिया, ठीक है. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन द लेफ्ट, फंक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑन द राइट, ठीक है. Similarly, expected value of x4 will be greater than equal to expected value of x power 4. What about linear? What about linear function? Linear function के बारे में क्या होगा? ये convex होता है या नहीं होता? Yes or no? Yes or no? Answer in the chat window. या non-verbal feedback दे दें या green red button में से. Linear is linear convex or not? Is linear convex or not? ये आपके पास linear function है कोई. मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ. So this is not convex. This is not convex. This is not concave either. This is not concave either. So इसके केस में जेंसन इनइक्वालिटी जो है वो एक्चुअली इक्वालिटी बन जाती है. वो इक्वालिटी बन जाती है. कैसे? Expected value of ax plus b. This is a linear function of x. Linear function of x. We know that this is equal to a times expected value of x plus b. This is that function of the expected value. So expected value of the function of the expected value on the right. Okay. So ये दोनों बराबर होते हैं. Greater than equal to नहीं है. एक और example, and the example is expected value of e power x. E power x is greater than equal to expected value of x. ये भी e to the x जो है, if you recall, e to the x ये इस तरह का function है. Again, convex function. ठीक है. e to the e power tx, ये भी एक convex function है. t is some positive number. e to the power tx. ठीक है. ये हमने क्यों लिखा है? ये भी आपको पता चलेगा because this has some importance. The quantity on the left hand side, is called moment generating function, or MGF of the random variable x. Moment generating function very useful. बहुत सारी random variable की manipulation में और addition, subtraction, functions of multiple random variables उसमें बड़ा काम आता है. Yeah. So we are going to talk about another bound which uses this moment generating function, and this bound is called the Chernoff bound. Chernoff bound क्या कहता है? Chernoff bound कहता है, ये भी probability bound है. Chernoff bound says the probability that x is greater than equal to a is less than equal to e to the minus ta into m of t, where m of t is the moment generating function of x evaluated at t
for all t greater than 0, for all t greater than 0, हर t के लिए ये Chernoff bound जो है ये valid है, where m of t is the moment generating function e to the power tx, expected value of e to the power tx. और ये हम मालूम कैसे कर सकते हैं, बड़ा इजीली मालूम कर सकते हैं. दिस वुड सिंपली बी इक्वल टू e to the t small x into fx of x dx integrated over the entire range of x over that. ये फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल है e to the tx, एक फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, और फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे ही फाइंड करते हैं. Now, quick example here. Chernoff bound on Poisson lambda. Probability x greater than equal to I is less than equal to e to the minus I t m of t. ये तो हमें Chernoff bound ने बता दिया, Chernoff bound ने बता दिया, ठीक है. We can show that for Poisson lambda, m of t is equal to e to the power lambda e power t minus 1. ये कैसे, ये हम प्रूव कर सकते हैं, इसी की डिस्क्रीट वर्जन लिखें और दिस विल जस्ट फॉल थ्रू. कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपली आपने वैल्यू पुट करनी है, सो डू इट एट होम. So probability that x is greater than equal to I according to Chernoff bound is less than equal to e to the minus I t into e to the lambda e power t minus 1. By the way, Chernoff bound ये कहता है कि this expression is true for all t greater than 0. वो ये कहता है कि this expression is true for all t greater than 0. ठीक है. अब यहाँ पे मैं t को कुछ भी पुट कर सकता हूँ, t को 0 भी पुट कर सकता हूँ, t को इंफिनिटी भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या वैल्यू पुट करूँ, t की क्या वैल्यू पुट करूँ? हमें t की वो वैल्यू पुट करनी चाहिए जो इस राइट वाली एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर दे. क्यों मिनिमाइज कर दे? व्हाई? थिंक अबाउट इट. मुझे ये नंबर जो है छोटे से छोटा चाहिए, ऐसा t पिक करना है. क्यों ऐसा t पिक करना है? इसलिए पिक करना है ऐसा t कि ये बाउंड मेरे पास टाइट हो जाए. इस बाउंड को मुझे टाइट करना है. ये मुझे पता है लेस देन इक्वल टू है. अगर राइट वाली साइड का आंसर मेरे पास 1 आ जाए तो मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, कुछ पता नहीं चला कि क्या हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू i इज लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, सो बिग डील. दैट इज नॉट एन इंफॉर्मेशन. हाँ, दिस वुड बी एन इंफॉर्मेशन if I tell you that probability x is greater than equal to I is less than 0.7, then you will say, hey, मुझे पता है 0.7 से बड़ी नहीं हो सकती, so you have helped me with some information. If you tell me that probability x less than equal to I is less than 0.3, that is even better information. So I want this guy to be as small as possible. So ऐसा t पिक करना है जो इसको स्मॉलेस्ट बना दे. कैसे करती हैं? कोई आपके पास फंक्शन दिया हुआ हो, उसमें स्मॉलेस्ट करने के लिए कैसे करते हैं? देखें, ये e to the power, this guy here on the right side is e to the power lambda e power t minus 1 minus it है. देखें, जब एक्सपोनेंट e का जो ये पावर है, जब ये छोटे से छोटी होगी उस वक्त e to the power ये भी छोटा से छोटा होगा, which means कि I need to minimize this. इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे? इसका डेरिवेटिव लेके, टेक द डेरिवेटिव d by dt of this guy and put it equal to 0, and find a value of t, put it back, and then you can find that probability x greater than equal to I is equal to lambda power I e to the I minus lambda I to the power I. So t निकल गया इसके अंदर से. This is the best. This is the crisp bound. ठीक है, हमने ऐसा t पिक किया है जिसने इसको मिनिमाइज कर दिया. इससे छोटा आप नहीं कर सकते. Now, why did we do this exercise? हमने ये एक्सरसाइज की क्यों है?
ये एक्सरसाइज हमने इसलिए की है। आप कहेंगे कि भाई अगर आपको उसके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का पता है तो आपको तो उसको एग्जैक्ट आंसर पता था, तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता चल जाना था। तो एग्जैक्ट आंसर मुझे पता तो चल सकता था, ठीक है। बाउंड तो हम तब लगाते हैं जब आप एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते, लेकिन जब आपको उसके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का पता है, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन का भी पता होगा। इफ यू नो द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, you also know that the distribution, then in that case your answer would be कि हमने ये इसलिए आंसर निकाला है because the exact answer is also known to us, probability x greater than equal to I is equal to summation n is equal to I to infinity. ये पोसॉन का probability mass function है. This is your exact answer, and you can find it. तो फिर हमें ये वाले आंसर की क्या जरूरत पड़ गई जो अप्रोक्सीमेट था और बाउंड था? बाउंड की क्या जरूरत पड़ गई जब मेरे पास एग्जैक्ट आंसर आ सकता है? The reason for that is कि calculating this exact answer is very difficult. ये n is equal to 1 से infinity तक लेके जाएं, सारे को ऐड करें, तो you will be in trouble. So it's very easy to get this bound. In many cases, Chernoff bound is going to be very, very helpful. Okay? In the notes, C notes, ये दो एग्जांपल्स हमने और दी हुई हैं इसके अंदर, नोट्स के अंदर. Chernoff bound for normal 0 1. इसके लिए Chernoff bound एक निकाला है हमने, Chernoff bound. उसके अंदर भी ऐसा होगा कि आपने मिनिमाइज करना होगा t की किसी वैल्यू के ऊपर, and then approximate the answer. ये compare the answer with the exact answer. You already know normal 0 1 क्या कैसे होती है. Again उसके अंदर जो है वो ये आंसर इस तरह का निकालना जो है वो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. चर्नफ बॉन्ड से जो है वो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं. इसके लिए हमें लुकअप करनी पड़ेगी टेबल के अंदर, टेबल से लुकअप करके हम आंसर निकाल सकेंगे. बट इफ यू डोंट वांट टू look up into the table, you can get an expression जिसको एनालिटिकल एक्सप्रेशन होगी जिसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे एंड यू कैन फाइंड द आंसर. सो चर्नफ बाउंड उसका ये नोट्स में से देख लीजिए, ठीक है. एंड देन वी विल कम बैक टू द सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो हमने पहले एक दफा कवर किया है. सो वी विल रिविजिट द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इन द नेक्स्ट लेक्चर बिफोर वी मूव ऑन टू सर्वे सैंपलिंग. सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड एग्जांपल्स, ठीक है. इसके लिए द नेक्स्ट 3 पेजेस ये नोट्स के अंदर हैं, बट मोस्ट ऑफ इट इज ऑलरेडी कवर्ड प्लस सम एडिशनल एग्जांपल्स. कुछ एडिशनल इसके अंदर एग्जांपल्स हैं. ये प्लीज इसके लिए भी नोट्स को देखें. ये 2-3 पेजेस हैं सी नोट्स इन एग्जांपल्स के लिए. सो मेक श्योर यू टेक अ लुक एट दैट, ठीक है. Next time I will just very quickly review this. And then I will move to survey sampling. This would be the topic for the next lecture. So is there any question? Bilal, you have a question? जी सर, वो हमने कॉन्वेक्स फंक्शन किस तरह डिफाइन किया था? कॉन्वेक्स फंक्शन हमने ऐसे डिफाइन किया था. कॉन्वेक्स फंक्शन एक फॉर्मल डेफिनेशन भी है इसकी, लेकिन हमने उसकी जो ना तस्वीर से आपको डेफिनेशन बता दी थी कि कॉन्वेक्स फंक्शन ऐसा है कि कोई से 2 पॉइंट ले लें उसके ऊपर और उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में ये एक कॉर्ड लगा दें. इफ दैट कॉर्ड इज अबव द फंक्शन फॉर एवरी कॉर्ड के हिसाब से, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो फिर लीनियर फंक्शन बनता है कॉन्वेक्स. अबव नहीं होगी ना, वो उसके बिल्कुल इक्वल होती है. तो सर ये ग्रेटर देन एंड और इक्वल टू रीड करते हैं ना इसको? नहीं, डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन मैं बता रहा हूँ ना, वो तो हमने यहाँ लिखी नहीं है डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन. वो स्ट्रिक्टली कन्वेक्स फंक्शन डिफरेंशिएट करते हैं इसको हम. अगर वो इक्वल टू ना डालें तो उसको स्ट्रिक्टली, मैं अभी देख रहा था नेट पे, तो वो स्ट्रिक्टली कन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के हिसाब से आती है, और इक्वल टू डालते हैं तो कन्वेक्स फंक्शन होते हैं. इसीलिए जेंसन्स इनइक्वालिटी जो है ये लीनियर फंक्शन के ऊपर इक्वल टू के साथ आती है, ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ नहीं आती है. जो बता रहे थे ना कि ये इक्वल टू के साथ आती है
अदरवाइज तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए ना, लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ये एग्जैक्टली उसके बराबर आ जाती है, बिकॉज any 2 points on the linear function, if you connect them, the chord will be exactly on the linear function. ठीक है ना, उसके अबव होगी ना उसके बिलो होगी। और सर आखिरी चीज बता दें, ये वीक लॉ और स्ट्रॉन्ग लॉ में फर्क क्या है एसेंशियली? मतलब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 बोल देते हैं और वीक में हम कहते हैं वैल्यू अप्रोचिंग 0 हो जाती है। सो वीक लॉ और स्ट्रॉन्ग लॉ के अंदर ये है कि जैसे जैसे आप वैल्यूज इकट्ठी करते जाएंगे x1 x2 x3, तो यू विल स्टार्ट कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द मीन, वीक लॉ जो है ना वो ये कहता है कि आप थोड़ा बाउंस बैक करते हैं, इवेंचुअली आप इन्फिनिटी पे जाके आप जाएंगे मीन के ऊपर ही, लेकिन बीच में थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकता है। स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि आप बाउंस बैक भी नहीं कर सकते, आपने सीधा जो है ना वो जाना ही उसी की तरफ, कोई बाउंसिंग बैक नहीं होगी। एक दफा आप उसके नजदीक पहुंच गए, देन देयर इज नो बाउंसिंग बैक। ठीक है, दूसरे ये कि उसकी डेफिनेशन अगर देखें, वो उसमें प्रोबेबिलिटी की कन्वर्जेंस है। ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के अंदर प्रोबेबिलिटी की कन्वर्जेंस है। ये प्रोबेबिलिटी, ये मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, कि ये प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेस टू 0, ये एरो ये जो नजर आ रहा है ना, ये कन्वर्जेंस टू 0 है। यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर में दिस इज विद प्रोबेबिलिटी 1 है, विद प्रोबेबिलिटी 1 मींस के ये हम कह सकते थे कि कन्वर्जेस टू 1, लेकिन नहीं, ये कन्वर्जेस टू 1 नहीं कह रहा, कहता है दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। अगेन कन्वर्जेंस इज अ टॉपिक जो हमने कोर्स के अंदर कवर नहीं किया है, और ये 3-4 तरह की कन्वर्जेंस होती हैं जो वेल डिफाइंड है। हम कन्वर्जेंस का टॉपिक जो है वो इसके अंदर हमने सिर्फ जो है ना यहाँ पे सिर्फ टच अप किया है यहाँ पे, बट देयर इज ए एंटायर, उसके ऊपर 2-3 लेक्चर्स हो सकते हैं कन्वर्जेंस के ऊपर में। ठीक है सर। सर ये एक चीज और बता दें, जिस तरह ये वीक लॉ के अंदर हम ये अजम्पशन डालते हैं कि वो x1 x2 अप टू xn ये IIDs हैं, जी तो जी उसमें आपने ये लफ्ज यूज किया है देयर सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, और उसको आपने दूसरी तरह इस तरह बोला था कि ये आप समझ लें एक एक्सपेरिमेंट n टाइम्स रिपीट किया गया। तो सही दो अलग बातें नहीं है? नहीं, ये दो अलग बातें नहीं है, ये दो अलग बातें नहीं है। उनसे जो मैं रैंडम वेरिएबल्स जनरेट करवा रहा हूँ, you can consider them as instances of one single random variable, or you can consider them to be different random variables which are IIDs। दोनों एक ही बात है, दोनों एग्जैक्टली एक ही बात है। सर ये रियल वर्ल्ड में, अच्छा सर ये रियल वर्ल्ड में मेरा एग्जांपल सही होगा इस चीज के लिए IID बनेगा वो? क्या हम लाहौर में 20 साल के मेल्स की हाइट मेजर कर रहे हैं, तो ये सारे IIDs होंगे जो हाइट्स आएंगी? ये मैं आपको इसकी जो ना डाइस वाली एग्जांपल, मैं आपकी डाइस की एग्जांपल दे देता हूँ कि आप एक डाइस थ्रो करें, आप एक डाइस थ्रो करें और एक ही डाइस को आपने जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स थ्रो करना है, या हर बार एक नया डाइस लेके आना है, दोनों का आंसर एक ही आएगा। सर ठीक है सर, अगर मैं किसी और मुल्क के 20 साल के मेल्स की हाइट देखता हूँ तो वो भी पाकिस्तानी मेल्स की हाइट के बराबर होंगे या वो अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगी? वो एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगी, विच मींस कि वो IID नहीं। लेकिन अगर एक ऐसा मुल्क लेकर आए जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम वही है, तो इसका मतलब है कि फिर वो IID हो जाएंगे। तो सर ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? मतलब मैं 20 साल का ये फैक्टर तो मैंने फिक्स किया हुआ 20 साल का मेल, फिर नेशनैलिटी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनता है डिस्ट्रीब्यूशन के अलग होने में। देखें, अगर आप नेशनैलिटी डिफरेंट करेंगे और हमें अगर पता है कि लेट्स से कि इटली के लोगों की हाइट जो है वो कम होती है, ठीक है, वैसे भी कम होती है, तो इटली के लोगों की हाइट कम होती है और पाकिस्तान की एवरेज हाइट जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो दैट मीन्स के अगर एक मैं पाकिस्तानी लेता हूँ एक इटालियन लेता हूँ, तो दीज आर टू रैंडम वेरिएबल्स के इंस्टेंस, टू डिफरेंट रैंडम वेरिएबल जो IID नहीं है, जो IID नहीं, ठीक है, जो ठीक IID है। नहीं। जी बिल्कुल सही, ऐसी बात। तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि उनका मीन भी एक जैसा है, उनकी वेरिएंस भी एक जैसी है, उनकी पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन ही एक जैसा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके, so I will be available for a little bit on the office hours link। जो ऑफिस आवर्स वाला लिंक है, एक दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई बात करनी थी, they can talk to me right after the class, so I'll start that session right afterwards and I will be available for like 5-10 minutes. If you are not there, then I'll be gone.
All right. Thank you.